Okay, right. So actually this class is completely from the CCNA to CCNP, but if you want CCNP, then there is no problem. You can do the CCNP only. This is CCNA to CCNP. Although you people are good in CCNA, but we will just look over the CCNA part also here. So how we can proceed? Okay. Before going to the class, I just want to means make sure that how about this topic? Before going to the networking class, just let me know, guys, how comfortable you are on these two topics. Madan, Basant. Okay. So, so what I need to do, guys, we'll start from the CCNA. CCNA is completely basic part, but this thing is quite important for your career, for your complete in the interview purpose also. So first, what I need to do, need to cover this part. Although this is a CCNP will do, but again the CCNA, these things is quite mandatory. Even if you will do on your real life in your job, when you will do a meeting with the client, then that time also they will ask you this type of questions. Okay, as per the requirement. When we will go ahead, I will let you know. So this part is quite important. We will start this part, IP subnetting and IP part. Okay. Then on the CCNA, a lot of theoretical things are there like that. What is the router? What is the switches? What is the WLC? What is the access point? All the theory part are there in the CCNA. Okay. Let me open the syllabus for you also, all the syllabus. In this class, we will completely cover all the Cisco syllabus. Now, all the three syllabus has been opened. All these three syllabus we will cover in this class. Although you people are good in CCNA, but we will just look into the CCNA part also here. This is the CCNA. Okay. In this CCNA, you can see this part. Explain. First of all, we need to know when the syllabus tell that explain. Explain means no practical on that time. It is just what question? What is this? Okay, guys. So what is the router? What is the layer 2, layer 3 switches? What is NGF? What is IPS? What is IDS? What is access point? What is controller? What is DNA? Actually, this is a very good thing in the near future. Within next 2 to 3 years, this will come into the market in a very good way. This is known as the SDA solution, DNAT. And what are the endpoints? What are the servers? What is the power over Ethernet? These are just what type of questions. Nowadays, if you will do only what type of question, what is this? We cannot crack the interview. No one will ask right now. If you have more than one of your experience, then you will not get this type of questions. You will get practical based, scenario based questions. What we will cover in the letter, in the NCORE NRC. Okay. These are the theoretical part. Anyone, any doubt till now? Anyone, any doubt till now, please? No, sir. Okay. Then what we need to do in the CCNA, let me tell. This part is there. Tier 2 architecture, Tier 3 architecture, and spine leaf architecture. This is a DC architecture. Data center, we are using the spine leaf. Okay. This is exactly same in your NCORE syllabus. If I will open the NCORE syllabus, there is a 2-tier, 3-tier architecture is also there. Fabric capacity planning, that is the SEI.
means the spine leaf architecture. Okay, this is exactly same in the CCNP and the CCNA. Then again it's the same thing. You can see, just describe. Then what is the smaller piece? What is the on-prem? What is the cloud? Same in the CCNP Anchor also we can see this one. What is the one technology? Okay. Then we'll do something about the cabling part, like what is the fiber, what is the single mode fiber, what is the multi-mode fiber, what is the SFP, what is the 10 gig SFP, some real life example. What is the 10 gig SFP? What is the 1 gig SFP? Suppose I want to, someone is, just a minute, I am admitting someone, you don't know why she is not able to join. Okay. Okay. So 10 gig SFP, 1 gig SFP, these things we will all do on the SAP part also. Okay, these are the all described type questions. Single mode fiber, multi-mode fiber, what is the copper, what is the RJ45, what is the Cat5 cable, Cat6 cable, some real life example. We'll do it here. The main thing is that here in switching I will come. Then again, what is the collision domain? What is the single collision domain, multiple collision domain? What are the errors are there? What is the duplex? What is the native VLAN? If duplex is mismatch is there, what we will do? Here only the identity interface, but there will be no benefit if these two things and these three, if you will not do the practical, then there is no benefit. In the CCNA, there is no practical, but we need to do the practical. I will do a duplex mismatch issue, then you need to see, because in the real life, exactly same thing you will see for the duplex mismatch error. Your error disable. If you will do one side, it is 10G, another side it is 1G. How you can identify that? So these three things, definitely we need a practical session. This theory part we cannot, it's for me, it's not good. We need to do the practical session. Then in CCNA, I think this part is quite important. TCP UDP, TCP UDP. Any idea, guys, here who are there? Any idea about the TCP UDP part? Hello. Yes, sir, yes. Madan, Basant, Subrat. IP conflict, sir. Okay. TCP. Okay. TCP UDP. This is the quite important section for your interview purpose. Okay. The This, transmission control protocol and yes, user datagram. datagram protocol. Yes. User datagram protocol. Yes. ये काम करते हैं 7 लेयर पर, ये काम करते हैं 5 लेयर में. यस. एंड कनेक्शन लेस कैसे होगा, कनेक्शन ओरिएंटेड कैसे होगा, कौन स्लो होगा, कौन फास्ट होगा? सर फर्स्ट होगा UDP. This is not secure actually. But Yes. trusted and reliable TCP. TCP. Yes, that thing we would deeply need to know. And on this TCP UDP, the most important thing is that packet capture part. Nowadays, okay. Nowadays, what people are doing, what interviewer are doing, they will not only ask you what type of question, they will give you scenario based questions. They will check whether the practically you are strong or not. They will do some packet type questions. Means suppose from this PC, a simple question. Suppose this is a PC. This is a PC. A very simple question. Suppose I will put it here on an interview basis. Here I am putting 10.1. Here also I am putting the IP 10.1. How they will know each other that I have the same IP? What is the mechanism behind it? Who is
सर एक्सप्लेन इन हिंदी ऑल्सो, ओके नो प्रॉब्लम। यहाँ पे देखिए मैं एक क्वेश्चन एक पूछ रहा हूँ कि 10.1 में एक पीसी डाल दिया, यहाँ पे एक पीसी डाल दिया, सपोज PC1, यहाँ पे PC2, ये 10.1 है, यहाँ पे भी मैंने आईपी डाल दिया 10.1। सो मुझे कोई भी यहाँ पे बता सकता है कि अगर मतलब आप लोग ऑलरेडी सीसीए ने कुछ कुछ यहाँ पे कर चुके हो, तो कोई मुझे बता सकता है कि कैन एनीवन लेट मी नो कि इस दोनों पीसी को कैसे पता चलेगा कि भाई मेरे बगल वाला पीसी की भी आईपी सेम है? ग्रेसियस आप। वेरी गुड। हु टोल्ड दिस? कौन बोला? थैंक यू। तो ग्रेसियस आपसे ये पता चलती है। तो इस टाइप की क्वेश्चन फिर वो लोग पूछेंगे कि यहाँ पे सपोज बीच में एक राउटर डाल देंगे, ठीक है, मान लो कि एक स्विच डाल देंगे, एक स्विच डाल देंगे, दोनों केबल कनेक्ट होगा, ठीक है, और दोनों को मैं एक्सेस 10 में डालूंगा, एक्सेस 10 20, एक्सेस 10 20, विल एसटीपी कम इन टू प्ले इन दिस सिचुएशन? एसटीपी की क्या रोल रहेगा इस यहाँ पे? अगर मैं ऐसे नॉर्मली कनेक्ट कर दूंगा, कुछ नहीं करूंगा, विल एसटीपी कम इन टू प्ले? यहाँ पे एसटीपी काम करेगा क्या? तो इस टाइप की चीज ना कंप्लीटली आजकल आप उम्मीद ये मत रखना बिल्कुल भी कंपनी से कि वो लोग आपको पूछेंगे कि व्हाट इज स्विच, व्हाट इज राउटर, व्हाट इज टीसीपी, व्हाट इज यूडीपी। फॉरगेट अबाउट दिस पार्ट, नो वन विल आस्क। इवन if you have more than 1 year experience, you will accept some kind of means practical या scenario based questions। इसके बाद हम देखेंगे कि सम IPv6 पार्ट, ये मैं कवर करूंगा आपको एक साथ, कोई फायदा नहीं है अगर मैं थियोरी करूंगा प्रैक्टिकल के साथ। सेम थिंग है मेरा CCNP एनकोर में, आई विल शो यू CCNP एनकोर या एनआरसी में ये चीज है, ठीक है। देन these things, some one second, let me admit some. Then again, these things is quite important for our switching part, because स्विचिंग में हम क्या करेंगे, स्विचिंग में जो सीसीएनए की सारा चीज तो मतलब सारा डिस्क्राइब 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 सारा थियोरेटिकल दे दिया सीसीएनए, बट ये जो स्विचिंग का दिया ना, ये स्विचिंग का सीसीएनए सबसे सही है, बहुत चीज यहाँ पे दिया है। क्योंकि आपको स्विचिंग मिलेगा जो सीसीएनए में मिलेगा, एंड 3 टॉपिक्स एक्स्ट्रा आपको मिलेगा सीसीएनपी एनकोर में। एंड अगेन मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, जो सीसीएनपी एनआरसी है, अभी मैं आपको शो करूंगा क्या लैब करेंगे, सब कुछ शो करूंगा। सीसीएनपी एनआरसी जो है, यहाँ पे स्विचिंग की जो परसेंटेज होती है 0, स्विचिंग बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एनआरसी होती है एडवांस राउटिंग, स्विचिंग नहीं होती है। एनकर में आपको मिलेगा 3 टॉपिक्स एक्स्ट्रा, रेस्ट एवरीथिंग विल बी कवर्ड हियर। although some people here already you did the CCNA, बट मेरा जो वो होती है CCNP वाला क्लास जो होती है, मैं स्विचिंग CCNA भी करवाता हूँ। क्योंकि रीजन ये होती है बंदे भूल जाते हैं, अगर मैं यहाँ पे जैसे पहला क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पे मैं एक्सेस में दोनों पोर्ट डालूंगा, तो विल एसटीपी कम इनटू प्ले? तो बेसिक से आपको जानने की जरूरत है। जैसे मैं जीआर की पूछा था, आप जीआर की पूछा था, जीआर की पैकेट आपको कैसे दिखेगा? मतलब अब कोई मुझे यहाँ पे बताया कि जीआर जनरेट होगा, बट जीआर में अगर ऑपकोड क्या होती है, ऑपकोड 0 कब आती है, ऑपकोड 1 कब आती है, बहुत बेसिक मतलब पैकेट कैप्चरिंग की टाइप आजकल पूछ रहे हैं। तो जब मेरा सीसीएनपी एनकोर भी होगा यहाँ पे, तो सीसीएनए की क्लास कवर करूंगा स्विचिंग पार्ट, बिकॉज सीसीएनए स्विचिंग बहुत बढ़िया है। ओके, all the topics we will cover, like STP, what is trunk bot, what is native VLAN, LLDP, what is the CDP, what is the Ether channel, all the things we will cover in the CCN, everything. Then what I will do, 3 topics will be extra here. Let me show you. Layer 2. 3 topics. Trunking already there. Ether channel will do again. And this is the good thing, RSTP and MST. MST, there is will be a lot of benefit will there. Along with the MST, one thing missed here in the Cisco syllabus, but in the real life you are doing the load balance part. अगर मैं सिर्फ MST करूंगा या STP करूंगा, हमेशा मेरा एक लिंक ब्लॉक हो जाएगा। STP में क्या होती है, सपोज दिस इज 3 लिंक, ओके,
सपोज मेरा हर एक स्विच में VLAN 10 to 20 यहाँ पे है। जो लोग CCNA किए हो वो मुझे बता सकते हैं कि सपोज 10 to 20 यहाँ पे भी है, 10 to 20 यहाँ पे भी है। तो इस केस में मेरा सारा लिंक यूटिलाइज होगा या कुछ लिंक ब्लॉक हो जाएगा? कोई बता सकता है यहाँ पे? हेलो। यस, एक लिंक अपना ब्लॉक होगा उसके एक लिंक अंदर अपना ब्लॉक हो जाएगा ना हमेशा। कम कम एक्चुअली एक लिंक ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। बट रियल लाइफ में हम क्या करते हैं कि जैसे MST डालते हैं, मैं चाहूंगा हर एक इन कुछ कुछ मतलब 10 to 15 के लिए मेरा ये लिंक ब्लॉक हो, बट 15 to 18 के लिए मेरा ये लिंक ब्लॉक हो, 19 20 के लिए ये लिंक ब्लॉक हो जाए। मतलब हर एक लिंक का मैं यूटिलाइज करूंगा। कैसे MST STP में वो चीज होती है, कैसे बेनिफिट होती है, रियल लाइफ में हम कैसे करते हैं, उसका एक लाभ मैं देता हूँ हर एक क्लास में, एब्रीविएचएस। ओके, ये मेनली हो गया आपकी CCNA की पार्ट। उसके बाद थियरी थियरी टॉपिक है, जब CCNA करेंगे उस टाइम देखेंगे। वेरी थियरी थियरी स्मॉल पार्ट इज देयर, व्हाट इज VPN, everything, because I need to cover everything practically on the CCNP. What is DSCP, what is DNS, what is SNMP, every lab is there. What is the DSCP? मानस एक चीज पूछनी थी कि हम्म, एमएसटी could you please repeat, एक बार पूछिए, और क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रहा है। मानस मुझे पूछना था, एमएसटी रियल लाइफ में यूज होता है क्या? हाँ हाँ, MST यूज होती है, क्योंकि MST का मेन बेनिफिट वही होती है ना, मैं इंस्टेंस क्रिएट करूंगा। क्योंकि मेरा STP में क्या होती है, हर एक VLAN के लिए हर एक STP एक STP प्रोसेस जनरेट होती है। MST में किस कंडीशन में एमएसटी यूज करेंगे, मतलब जैसे क्या MST, जरूरत पड़ेगी कि हमें एमएसटी यूज हाँ, करना ही ओके पड़ेगा? ओके ओके, MST इसलिए जनरेट करते हैं हम, क्योंकि सपोज आपके एनवायरमेंट में 100 आपकी VLAN चल रहा है, ठीक है। सपोज ये नॉर्मल STP अब चल रहा है, सपोज मान लो 1 तो बाय डिफॉल्ट होती है, 1 to 100 है। तो इस केस में कितना STP प्रोसेस जनरेट होगा? नॉर्मल STP में, नॉर्मल STP की बात कर रहा हूँ। MST इज नथिंग, जस्ट अ फ्लेवर ऑफ STP। बट मुझे एक चीज अब यहाँ पे कोई बताएगा कि 1 to 100 सपोज मेरा यहाँ पे है, कितना STP प्रोसेस जनरेट होगा? 200. 100 ऑफ STP। और हर एक के लिए BPDU जनरेट होगा। BPDU कितने में जनरेट होती है? पर 2 सेकेंड में। तो आप सोच लो कितना मेरा एनवायरमेंट में यूटिलाइजेशन ये चीज हो रहा है। बट अगर MST में करूंगा, इसका ओवरकम करने के लिए मैं क्या करूंगा, इंस्टेंस क्रिएट करूंगा। बाय डिफॉल्ट होती है 0। अगर मैं कुछ इंस्टेंस क्रिएट नहीं करूंगा तो हर एक VLAN यहाँ पे आ जाएगा 1 to 100। बट इफ आई वांट, आई कैन सेग्रीगेट दिस वन, 1 to 30 I can put it here, 31 to 90 I can put it here, 91 to 100 you can put it here, each as per your requirement. So इंस्टेंस के बेसिस में अभी STP प्रोसेस आपकी जनरेट होगा। कितना डाउन हो गया मेरा STP प्रोसेस की, कितना लोड कम हो गया, एंड इस इंस्टेंस के बेसिस में आप अभी लोड शेयरिंग मार सकते हो। 0 के लिए एक लिंक यूज करोगे, 1 के लिए एक लिंक, 2 के लिए और एक। द कंप्लीट थिंग आई कैन अचीव फ्रॉम द MST। प्रीतम, इट्स क्लियर नाउ? यस, इट्स क्लियर। Now these are the small theoretical part we'll cover there. Okay, and let me show you the anchor part also. Anchor mainly it is a mix-up profile. Your routing is there, your switching is there, wireless is there, wireless is there, and some theoretical about the SD1, SDA, and the SCI. These are some theoretical topics are there. All you are, everyone, I think you are about the SD1 part. आप सभी लोगों को पता है SDA एंड SCI के बारे में? क्या टेक्नोलॉजी है SDA एंड SCI? नहीं, पता नहीं था मुझे तो। सर मैं ओके, बताऊं? हाँ हाँ बताइए, जिसको आता है बताइए। सर SD WAN जो हमारी
पुरानी टेक्नोलॉजी इवेंट टेक्नोलॉजी जो यूज करते थे, हम्म अभी वो सॉफ्टवेयर डिफाइन हो गया, मीन्स हम्म वही जो मोस्टली हम CLI आज करते थे, अभी थोड़ा GUI टाइप का हो गया है। ठीक वेरी है। गुड। ACI में ये ACI यूज होता है सर, जहाँ पे डेटा सेंटर होते हैं हमारे। यस, वेरी गुड। ओके। और ये बीच में क्या लिखा है सर मैंने, एस डी ए। SDN, यहाँ पे जो स्विचिंग का, मे भी ये स्विचिंग का है। हाँ हाँ, हाँ राइट। यस सर, स्विचिंग में SDN यूज होने लगे अभी। यस सर। यस, ये मतलब क्या हो गया है कि गाइस आजकल कंट्रोलर के थ्रू सारा टेम्पलेट में डालेंगे। ये CLI सिस्टम, इसमें मेरा फायदा क्या होगा कि SDA में अगर मैं कुछ डिवाइस कॉन्फ़िगर करूंगा, ये मेनली मेरा स्विचिंग एनवायरनमेंट का है, LAN का। ये है मेरा डेटा सेंटर का, और ये है मेरा प्राइवेट वन का। ठीक है। तो ये सारा कंट्रोलर बेस्ड हो गया, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क हो गया आजकल सारा। तो इसके बारे में थियोरेटिकल डिस्कशन है, बट सेपरेट कंप्लीट डिफरेंट टॉपिक होती है SD1 के लिए, ACI के लिए, एंड SDA के लिए। ये कंप्लीटली डिफरेंट क्लास होती है, बट यहाँ पे आपको थियोरेटिकली मिलेगा क्या कंपोनेंट है, क्या फायदा होती है, SCI में क्या कंपोनेंट होती है, स्पाइन लीफ आर्किटेक्चर क्या होती है, SDA में आपकी डीनक क्या होती है, डीनक को कैसे कॉन्फ़िगर करनी है, मतलब थियोरेटिकली कैसे साइट को ऑनबोर्ड करनी होती है, कैसे वायरलेस को ऑनबोर्ड करनी होती है डीनक में, ये सारा चीज। And the most important thing is that here the wireless part is there. And if you will cover properly, अगर आप सही से पढ़ लोगे ये CCA NP एनकोर की वायरलेस, तो अप टू L1.5 से लेके L2 तक काम आप कर लोगे, अगर सही से पढ़ लोगे, ढंग से पढ़ लोगे। जितना यहाँ पे कवर किया जाएगा, अगर आप ढंग से पढ़ लोगे तो L1.5 से लेके L2 तक काम आप आराम से कर लोगे। जो जो वायरलेस में कब है आपकी चीज, लेट मी शो यू वायरलेस में क्या क्या है यहाँ पे। सर मेरा एक क्वेश्चन है, हम्म जैसे वायरलेस में आपने बताया, वायरलेस हम्म में मोस्टली इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं आपने हाँ वायरलेस पे काम किया है कि नहीं किया हाँ है, हाँ। तो हम उनको बोलते हैं, कभी हम्म कभी ऐसे बोल देते हैं अरूबा पे काम किया है, मराठी पे हम्म काम किया है, हम्म बट मेरे यहाँ पे मराठी यूज होता है, तो हम्म आई डोंट नो हाउ टू, मतलब उनको कैसे, मतलब वायरलेस से मोस्टली आपको ये है कि वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे पूछेंगे, तो उनको हाँ, अभी डिमांड भी बहुत ज्यादा है वायरलेस पे सर। देख, यस, सही आपने जो भी बोला कि सही बोला। अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला वायरलेस, अगर कोई काम किया है इट्स ओके, नहीं किया है इट्स ओके। अगर कोई 9800 का नाम सुना है, ये अभी लेटेस्ट है। ये आपकी जो था ना 5508, 5504, 3504, 2504, ये सारा ऑब्सोलीट हो रहा है। ठीक है। साथ 3504 एंड 2504, 3504 शायद 2027 में ऑब्सोलीट होगा, बट दीज आर गॉन। नाउ दी 9800 कम्स इनटू द मार्केट। ये हमारा होती है कैटलिस्ट। यहाँ पे कोई कैटलिस्ट स्विच में काम किया है? कैटलिस्ट स्विच में कोई काम किया है? यस मैंने किया हाँ है। हाँ। तो एग्जैक्टली जो 9800 वायरलेस है ना, वो एग्जैक्टली कैटलिस्ट हो गया, ये पुराने तरह का नहीं है। इसमें कॉन्फ़िगरेशन पूरा अलग होती है, ये बहुत इजी होती है। अगर आप किसी को स्विच कॉन्फ़िगरेशन करना आता है, ठीक है, या यस सर। स्विचिंग, हाँ, स्विचिंग क्लास के बाद आप सीख जाओगे कि बेसिक स्विच कैसे कॉन्फ़िगर करना है। एग्जैक्ट सेम कमांड, एनेबल, कॉन्फिग टी, एवरीथिंग सेम ऑन द 9800 वायरलेस। बहुत इजी बना दिया सिस्को ने इसको, वो कैटलिस्ट के थ्रू हो गया। अब कोई मादन शायद आपने पूछा कि इंटरव्यू में हम कैसे बोलेंगे कि ये चीज हमने अगर काम भी नहीं किए होंगे तो किस टाइप की, वो चीज मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि इंटरव्यू में यहाँ पे जो लिखे हैं वो आपको नहीं पूछेंगे व्हाट इज RSSI, व्हाट इज द सिग्नल टू नॉइज रेशियो, उस टाइप की वो नहीं पूछेंगे। मेनली आपको इंटरव्यू में ये चीज पूछा जाता है। और इसमें भी कैसे पूछते हैं, सपोज मेरा एक्सेस पॉइंट जो कि यहाँ पे नहीं है, ये हो गया एक्सेस पॉइंट, ये हो गया WLC। एक्सेस पॉइंट WLC के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, एंड व्हाट विल बी द प्रोसेस यू नीड टू फॉलो। यहाँ पे एक यस सर। WLC है, यहाँ पे दो एक्सेस पॉइंट है। मैं जस्ट इंटरव्यू में कैसे पूछते हैं वही बता रहा हूँ, डीपली विल गो इनटू द क्लास। सो ये WLC इंडिया में है, ये WLC मेरा नोएडा में है, सॉरी ये एक्सेस पॉइंट नोएडा में है, ये WLC डलास में है।
इफ यू आर नॉट एवर अबाउट द डलास, इट इज ए सिटी इन यूएस। अभी मेरा क्वेश्चन है, एंड यहाँ पे एक और एक डब्ल्यूएलसी है। मान लो ये आपकी हो गया, वही डलास में हो गया या न्यूयॉर्क में हो गया, यूएस में। तो मुझे एक सिंपल सी चीज यहाँ पे बताना, ये जो नोएडा वाली एक्सेस पॉइंट है, which WLC it will prefer? Dallas it will prefer, और इंडिया सपोज इट इज इन मुंबई, मुंबई को प्रीफर करेगा? क्योंकि मेरा एनवायरनमेंट तो बहुत बड़ी है, ऑल ओवर इंडिया जो चल पास में अलग। है, जो पास में उसे उसे प्रिपेयर करेगा, आई सपोज। हाँ, जो पास में है उसके पास जाना चाहिए, बट इंटरव्यू में आएगा ये कैसे फेच करेगा इसको। मेरा तो सारा राउटिंग हो रखा है इंटरनली, सारा तो राउटिंग हो रखी है। ये एक्सेस पॉइंट तो यहाँ पे भी चला जाएगा डालस। अगर डालस चला जाएगा, मेरा तो नेटवर्क में लेटेंसी बहुत आ जाएगा, यूजर बहुत कंप्लेन करेंगे। तो कैसे होगा ये चीज? इस टाइप की चीज वो पूछते हैं। मान लो एक्सेस पॉइंट जैसे इसके साथ डब्ल्यूएलसी में गया, बीच में एक्सेस पॉइंट गायब हो गया आपकी डब्ल्यूएलसी से, नहीं दिख रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? तो इस टाइप की चीज वो जैसे पूछते हैं ना, यहां से आपकी चेक किया जाता है सही में आप काम किए हो या जस्ट यूट्यूब वीडियो देख के आए हो। तो ये सब रियल लाइफ की होती है। अगर आप इस चीज को कोई आप मतलब कोई नहीं आपको बताएगा कि आप नहीं करोगे, तो उस टाइम यू विल स्टक, क्योंकि आपको पता है भाई एक्सेस पॉइंट डब्ल्यूएलसी के साथ कनेक्ट हो जाएगा, बट कैसे कनेक्ट होगा, बिहाइंड द प्रोसेस क्या होती है, उसका मैकेनिज्म क्या चलती है। अगर डाउनलोडिंग स्टेट में जाती है, वो मैं क्लास में बताऊंगा। डाउनलोडिंग स्टेट में जाने के बाद क्या होती है वो पूछेंगे। वो रजिस्टर्ड होती है, उसके बाद वन टाइम रिबूट होती है, ये प्रोसेस होती है। अगर कोई बंदा काम नहीं किया होगा या कोई उसको नहीं बताएगा कि भाई ये रिबूट होती है डाउनलोडिंग पर। हाँ सर, उसको करने के बाद उसका मैक लर्न हम जैसे, हाँ अगर मैक है उसका मैक एड्रेस में अगर मेरी साइट पे फायरवॉल है, फायरवॉल में हाँ। उसको हम मैक को कर देते हैं, हम्म। राउटर है तो राउटर में करते हैं। उसके बाद सब करने के बाद, उसकी कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद, हम्म। अगर मेरा L2 है तो उसमें अगर पॉलिसी है तो वो पॉलिसी भी हम लोग अप्लाई करते हैं। हाँ, उसके बाद उसको रिबूट करते हैं वन टाइम। ये एक्चुअली जो रिबूट आप करते हो ना, वो डाउनलोडिंग के बाद ऑटो रिबूट होती है। जैसे ये एक्सेस पॉइंट जाएगा ना डब्ल्यूएलसी में, ये पहले क्या होगा कि डाउनलोडिंग प्रोसेस में जाएगा। डाउनलोडिंग प्रोसेस क्या होती है, एक्सेस पॉइंट की जो आपकी बेसिक इमेज होती है ना, क्योंकि एक्सेस पॉइंट में इमेज वो बेस होती है, वो इमेज अपग्रेड करता है कहाँ से, डब्ल्यूएलसी से। जब तक इमेज अपग्रेड चल रहा है तो उस स्टेज को बोलते हैं डाउनलोडिंग स्टेट। मेरे यहाँ पे वंस, क्वेश्चन है मानस। यस गो अहेड। हाँ, अब क्या इसी जब वो इमेज डाउनलोड करेगा, उसी कंडीशन में क्या वो डिसाइड कर लेगा कि मुझे मुंबई से डाउनलोड करनी है ना कि कैलाश से डाउनलोड करनी है? ना, दैट इज अच्छा, थ्रू उसके द बाद ऑप्शन। करता है। ना 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 ना, बिफर डाउनलोडिंग के बिफर वो आपको ऑप्शन 43 नाम की एक चीज होती है, ठीक है। ठीक है। वो आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा एक्सेस पॉइंट की, आप डीएससीपी जहां पे कॉन्फ़िगर करते हो, ठीक है। ओके। वहां पे एक ऑप्शन होती है, दैट इज नोन एज द ऑप्शन 43, जिसको बोलते हैं कि वेंडर एनकैप्सुलेशन। उसमें क्या होता है? उसमें ये बोलते हैं कि व्हाट इज ऑप्शन 43? ऑप्शन 43 इज द हेक्साडेसिमल फॉर्मेट ऑफ डब्ल्यूएलसी। अच्छा, देखो, तो ऑप्शन 43 डिसाइड करता है कि मुझे किस डब्ल्यूएलसी के किस पास जाना डब्ल्यूएलसी में जाना पड़ेगा। वो एक्सेस पॉइंट जैसे आईपी ले लेगा, सपोज इस एक्सेस है। पॉइंट की आईपी है 10.1.1.1, ठीक है। ये स्लैश 24.110 से आईपी ले लिया। इस सबनेट से मैंने ऑप्शन 43 कॉन्फ़िगर किया होगा। व्हाट इज ऑप्शन 43? हेक्साडेसिमल फॉर्मा वैल्यू ऑफ दिस डब्ल्यूएलसी आईपी। जैसे वो देख लेगा ना कि ओ मेरा ऑप्शन 43 आईपी ये है, तो वो जो कैपअप टनल बनेगी इसके टुवर्ड्स बनेगी। क्लियर ना? ओके। ऑप्शन हाँ, 43 स्टार्टिंग में डिसाइड वो करेगा डिसाइड कर लेगा कि किस डब्ल्यूएलसी हाँ के पास किस जाना है। किस समझ में गया। जाना पड़ेगा। एंड गॉट इट। 99% केस में थ्रू ऑप्शन 43 इट इज गुड, बट 1% केस में क्या होती है कि ये उसके पास जाएगा ही नहीं। देन दैट टाइम यू नीड टू टेक द कंसल्ट, एंड आपको देखना पड़ेगा कि जो कैपवेब टनल मेरा हो रहा है पैकेट कैप्चर के थ्रू, वो क्यों नहीं जा रहा है, क्यों बार बार 255 255 255 वो क्यों ब्रॉडकास्ट कर रहा है। ऑन दैट कंडीशन आई हैव सेकंड ऑप्शन, आई कैन डू द कैपवेब एपीआईपी। कैपवेब एपीआईपी कमांड होती है, मैनुअली मैं डालूंगा, तब जाके होगा, आप ये नहीं तो। ट्रबल शूट करना बताओगे ना इनको जब क्लास यस, होगी हाँ हाँ हाँ, तो? विल डू द ट्रबल शूट सेशन। ओके ओके, बस ये जानना था। हाँ, ठीक है।
Okay, let me go into the next one. These are the topics, everything we will cover. Today I cannot tell all the things because it's a 1 hour session. Everything need to cover. But wireless, believe me, if you will do CCNP anchor properly, ये नहीं कि बस हाँ पढ़ लेंगे, but if you will do properly, then up to L1.5 to L2 you can crack. I am not telling you that L3 you can crack, but L1.5 to L2 you can easily crack. Whatever the wireless topic is there. Everything is there. Anchor part is not there here. What is anchor? What is the mobility tunnel? What is the mobility group? These are not there. Rest, most of the things are there. And HA is also not there. How will configure the HA? But in the interview, they will ask you. So theoretically, I will let you know what are these things. Now, this once we will do this one, let's concentrate something about the routing part, which previously it was known as the routing and switching. So here it is the routing part. Its minimum routing is here in the CCNP anchor because CCNP anchor में आपका क्या है, ये मिक्सअप सिलेबस है, वायरलेस है, स्मॉल स्मॉल टॉपिक है, एनटीपी है, डीएससीपी है, ये सारा टॉपिक है, तो इसीलिए राउटिंग की पूरा नहीं है। राउटिंग पूरा मिलेगा हमें एनआरसी में। देखो राउटिंग में ईआईजेआरपी, ओएसपीएफ भी है, बीजीपी है, बट बीजीपी यहाँ पे कंप्लीट नहीं है। किसी भी चीज ओएसपीएफ भी पूरा कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे पूरा कंप्लीट नहीं है ईआईजेआरपी, स्मॉल स्मॉल थिंग्स है। ये सारा चीज कंप्लीट कहाँ पे आपको मिलेगा, इस सिलेबस में। सीसीएनपी एनआरसी में अगर मैं आऊंगा, यहाँ पे देखो कंप्लीट कंप्लीट ओएसपीएफ, I think named mode is also there. EIGRP. Named mode, it should be there. अगर named, यहाँ पे देखो named mode है। What is named mode? What is the classic mode? आप लोग जो अपने एनवायरमेंट में कर रहे हो ना, ये जो EIGRP 10 डाल रहे हो, उसके बाद नेटवर्क डाल रहे हो, ये सारा क्लासिक मोड होती है। नेम्ड मोड क्या होती है? अंडर वन अम्ब्रेला मैं कैसे सारा कॉन्फ़िगरेशन एक साथ डाल दूंगा, उसको बोलते हैं कि नेम्ड मोड। वो आपकी एनआरसी में है, वो कवर करेंगे। एंड उसके बाद आपकी बीजीपी है। अगेन बीजीपी इज कंप्लीट थिंग्स इज हियर, एंड दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इन द राउटिंग पार्ट। बीजीपी आपको क्लियर आनी चाहिए पूरा का पूरा कंप्लीटली। ओएसपीएफ, बीजीपी, डीआरबी, डीआर भी नहीं। ओएसपीएफ में डीआरबी डीआर कैसे होती है, डीआर फेल हो जाएगा तो बीडीआर की क्या रोल है। जस्ट लेट मी शो यू समथिंग हियर, व्हिच वन आई विल फॉलो। मैं आपको अभी लैब दिखाता हूँ क्योंकि लैब मैंडेटरी है। रीप आजकल नहीं है, रीप खत्म हो गया है क्योंकि लेस नंबर ऑफ अकाउंट की वजह से रीप को यूज नहीं कर रहा है। सिस्को ने भी हटा दिया है एनकोर एनआरसी से। अब देखो ये है मेरा ईआईजीआरपी की। पहले तो एनकोर में छोटी सी टोपोलॉजी करेंगे, ये 3 डाल के, यहां से बेसिक क्लियर होगा आपकी। बट जैसे यू विल एंटर इनटू द एनआरसी, यहाँ पे एनकोर में आपको कंप्लीटली ईआईजीआरपी क्लियर करनी है कि एसआईए क्या होती है, फिजिबिलिटी कंडीशन क्या होती है, एफडी क्या होती है, एडी क्या होती है, एंड व्हाट आर द पैकेट्स आर इन ईआईजीआरपी, क्वेरी पैकेट कब जनरेट होती है, एसआईए मोड में जब आता है कितने सेकंड तक राउटर वेट करता है। सारा चीज आपके एनकर में कवर करनी होगी। जब एनआरसी में आओगे, देन दिस लैब यू नीड टू परफॉर्म। A lot of networkers are there. You need to do the filtering here. This site authentication you need to do. Load balancing you need to do. Variance you need to do. And I will tell you that the time how to do the summarization. Summarization कैसे करनी है हमें। तो all the things in the NRC, this is a big lab and we need to cover this one. एनकर में स्मॉल स्मॉल टॉपिक से आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, बट एनआरसी जैसे आओगे, जैसे आपकी एनकर की कॉन्सेप्ट क्लियर हो जानी चाहिए, ताकि दिस लैब यू कैन इजीली परफॉर्म। अगर यहाँ पे मैं iOS 15 से नीचे डालूंगा तो क्या प्रॉब्लम होगी, R1 से जब 10 नेटवर्क ट्रेवल करेगी यहाँ तक, तो उसको क्या प्रॉब्लम होगी। तो वो बिलो
15 में एक होती है कि ऑटो समरी अपने आप हो जाती है, तो वो चीज मैं दिखाऊंगा आपको। जैसे मैं ओएसपीएफ में आऊंगा, देखो पहला लैब होती है स्मॉल टॉपिक, तो मैं आपको कवर कराऊंगा एनकोर में। दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग राइट नाउ। ये आपकी एनआरसी की है, क्योंकि एनआरसी में लैब बहुत बड़ी बड़ी होती है, क्योंकि पूछा भी जाएगा क्वेश्चन ऐसे। यहाँ पे मेरा एक सिंपल क्वेश्चन मैं पुट कर रहा हूँ। जो लोग आप यहाँ पे सीसीएनए ऑलरेडी कर चुके हो, जिनके सीसीएनए की नॉलेज है, मेरा एक क्वेश्चन यहाँ पे आंसर दो। इसमें R2 एंड R3 के बीच में कौन डीआर होगा, कौन बीडीआर होगा? क्योंकि सीसीएनए में ये चीज बताते हैं कि हम डीआर बीडीआर कैसे होती है इसमें। बेस्ड ऑन राउटर आईडी। नहीं, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे मेरा सारा चीज लिखा हुआ है। आप मुझे कोई बताएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, सपोज राउटर आईडी यहाँ पे मैं आपको डाल दिया 2.2.2.2, यहाँ पे राउटर आईडी डाल दिया 5.5.5.5। तो R2 एंड R3 में, सॉरी R2 एंड R5 में डीआर कौन होगा, बीडीआर कौन होगा? इसी टाइप की क्वेश्चन पुट होती है ओएसपी में। दिस इज द रीजन आई हैव टेकन दिस लैब, क्योंकि ये आपकी यहाँ पे नहीं है कोर्स में कि भाई किसमें डीआर होगा किसमें नहीं होगा। मेन चीज होती है प्रैक्टिकली हमें देखना होगा। यहाँ पे नहीं होती है पॉइंट टू पॉइंट में डीआर वीडीआर की सिलेक्शन नहीं होती है, वो एनबीए में होती है। इसीलिए मैं ये लिंक डाला हूँ इस लैब में, ताकि आपको दिखाऊंगा यहाँ पे डीआर वीडीआर नहीं होती है। किस कंडीशन में भी डीआर वीडीआर होगा एंड किस कंडीशन में भी डीआर वीडीआर नहीं होगा। दिस इज द रीजन आई हैव क्रिएटेड दिस लैब। एंड बड़ी सी लैब है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, बट कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे पूछूंगा अगेन कि इस एरिया जीरो में, ठीक है, जो सीसीएनए किए हैं उनको, जो एरिया जीरो है, डीआर बीडीआर कितना डीआर बीडीआर यहाँ पे सिलेक्शन होगा इसी डायग्राम के बेसिस में? एक एरिया में एक डीआर सिलेक्शन होती है या मल्टीपल डीआर सिलेक्शन होती है? 1। यार बाकी लोग भी बोलो हाँ ना। सारा बीजेपी की एक्टिव मोड में आ गए। हाँ ना, कुछ तो बोलो। सर हेलो। 1। हेलो सर, 1 होती है। वन होती है। ओके, एनी अदर आंसर? जिसको जो आता है बोलो यार, सीसीएनए से शुरू करेंगे ये। यहाँ पे सब हम नए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी किसी को कुछ भी आता है बोल दो। देखो यहाँ पे गलती करेंगे इट्स ओके, जितना गलती करना है करो, बट वन रिक्वेस्ट, इंटरव्यूअर के सामने जाके वो चीज फिर हम रिपीट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो बोलना है बोलो, जितना आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ती है। सब नए हैं यहाँ पे, हम सीखेंगे पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एवरीथिंग विल डू फ्रॉम द स्क्रैच। वन नहीं, एक्चुअली ये सारे बहुत बंदे, इवन इफ इंडस्ट्री लेवल में भी हम देखते हैं, जिस टाइम इंटरव्यू लेते हैं 50 to 60% पीपल यही बोलते हैं। इवन इफ एक्सपीरियंस पर्सन, दे हैव 5 to 7 year एक्सपीरियंस, एंड व्हेन वी आर आस्किंग द क्वेश्चन, जब हम पूछते हैं कि भाई लोग कितना डीआर वीडीआर सिलेक्शन होता है यहाँ पे, वो बोल देते हैं कि 1 होती है। ऐसा नहीं होती है, इट्स पर सेगमेंट बेसिस। यहाँ पे आपको कितना ब्रॉडकास्ट सेगमेंट है, कितना ब्रॉडकास्ट है यहाँ पे, ये एक हो गया ना। क्योंकि एक स्विच के साथ एक नेटवर्क मैंने डाल दिया, स्विच के साथ तो एक नेटवर्क ही कनेक्ट होगा। इस साइड और एक नेटवर्क है, इस साइड और एक नेटवर्क है, इस साइड और एक नेटवर्क हो गया ये वाला, ये एक और नेटवर्क हो गया ये वाला। तो इस कंडीशन में नहीं होती है भाई। मतलब हर एक ब्रॉडकास्ट सेगमेंट के लिए एक एक डीआर जनरेट होती है, एरिया की बेसिस में नहीं होती है डीआर, वो ब्रॉडकास्ट सेगमेंट की बेसिस में होती है। तो ये चीज का ध्यान रखना, इसीलिए मैं इतना राउटर यहाँ पे लिया हूँ, जस्ट आपको शो करूंगा। अभी वन मोर क्वेश्चन, ये वाला राउटर है, ये वाला S0/0, S0/0, F सॉरी दिस वन इज सिंगल लिंक, FA0/0, FA0/0, इस टाइप की पूछेंगे। यहाँ पे डीआर बीडीआर सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? यहाँ पे होगा या नहीं होगा? यहाँ पे होगा, क्योंकि इथरनेट होती है ब्रॉडकास्ट, ये होती है सीरियल पॉइंट टू पॉइंट, ये वाला। यहाँ पे देखो, इसीलिए मैं बोला कि नहीं होती, यहाँ पे सीरियल लिंक है ये। इस चीज का इंटरव्यू में बहुत छोटी छोटी चीज ध्यान रखना। ये इसीलिए मैं इतना राउटर लिया हूँ, सारा चीज करेंगे। जैसे ये चीज कवर होगा, यहाँ पे मल्टी एरिया भी सेटअप में एक साथ करूंगा, देन
मल्टी एरिया में कैसे डेटा यहाँ से यहाँ जा रहा है, विल सी दैट वन। टाइम लगेगा थोड़ा ओएसपीएफ कवर करने में, एनर्जी में, बट विल गो इनटू द डीपली। उसके बाद ये जो ओएसपीएफ का ये लैब है, ये सबसे बढ़िया लैब है, क्योंकि यहाँ पे आपको सारा चीज मिलेगा। ओएसपीएफ में कंप्लीटली एरिया पर देखो, एरिया जो होती है ना, आपको पूछा जाएगा कि भाई टोटल स्टॉप क्या होती है, मैं किस कंडीशन में मैं चाहूंगा कि मेरा LSA 5 या LSA 3 ना आए। देखो पहले कैसे क्वेश्चन पूछ रहे थे इंटरवल बिफोर 5 to 7 years बैक एगो, व्हाट इज द स्टॉप एरिया, तो इजीली यू कैन सी नाउ इट इज। क्योंकि बंदे आजकल कौन क्वेश्चन पूछ रहा है, जो जो फ्रेश आ रहे हैं ना, 5-7 साल की एक्सपीरियंस है, वो लोग आपको पूछ रहे हैं, और वो लोग पढ़ के भी आ रहे हैं सारा चीज। ठीक है, तो वो पूछ कैसे रहे हैं कि मेरे एनवायरनमेंट में मैं LSA 3 नहीं चाह रहा हूं, तो मैं कौन सी एरिया को यूज करूंगा। पहले टाइप की क्या पूछ लेते हैं, मैं स्टब एरिया कैसे यूज करूंगा, एंड सेम थिंग, क्वेश्चन रिमेन सेम, बट पूछने का तरीका अलग हो गया। अभी वो बोल रहे हैं कि LSA 3 मुझे नहीं चाहिए, तो मुझे स्टब एरिया मतलब कौन सी एरिया कॉन्फ़िगर करनी है। तो यू नीड टू नो स्टब एरिया में क्या होती है, टोटल स्टब में क्या होती है। इसीलिए मैं इस चीज भी लिख दिया कि सपोज इतना रूट से मेरे पास स्टब एरिया कॉन्फ़िगर करूंगा, इतना रूट आएगा, और मैं समझाऊंगा इस चीज को कंप्लीटली। मैं ये चीज लिखा हूं, एंड यू विल गेट ऑल दिस डॉक्यूमेंट, नो वरी अबाउट दिस पार्ट। देन यहाँ पे मैं EIZP भी डाल दिया, यहाँ पे मैं रीप भी डाल दिया, रीडिस्ट्रीब्यूशन मारूंगा, स्टैटिक रीडिस्ट्रीब्यूशन मारूंगा, इसका स्टब बनाऊंगा, इसको NSS से बनाऊंगा, क्यों बनाऊंगा उस टाइम बताऊंगा। तो यहाँ पे मल्टीपल अराउंड 10 राउटर्स है। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस चाहिए इस लैब को कंप्लीट करने के लिए, इट विल टेक 2 to 3 days, 1 day का काम नहीं है ये। तो सारे चीज यहाँ पे देखेंगे हम, कैसे हो रहा है, कैसे जा रहा है ट्रैफिक, कैसे पैकेट कैप्चर हो रहा है, आपको .5 .6 कैसे दिख रहा है, सारा चीज वो OSPF का लैब है। OSPF में मल्टीपल लैब है। इसके बाद वन मोर लैब होगा OSPF के, लेट मी सी, ये वाला। क्योंकि OSPF में और भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि OSPF में क्या एरिया 0 मैंडेटरी होता है सब एरिया के साथ डायरेक्टली कनेक्शन होने में। इज इट मैंडेटरी दैट एरिया 0 शुड डायरेक्टली कनेक्ट टू अदर एरिया आल्सो। इट्स नॉट मैंडेटरी। बहुत सारे बंदे बोलते हैं कि इट्स मैंडेटरी, इट्स नॉट मैंडेटरी। वी हैव अ टेक्नोलॉजी VL, मुझे कोई जरूरत नहीं है एरिया 0 मेरा एरिया 20 के साथ कनेक्ट होने की जरूरत नहीं है। मैं इसमें क्या करूंगा, एक वर्चुअल लिंक ही बना दूंगा ऐसे ऐसे करके, तो मेरा सब कुछ हो जाएगा अपने आप। तो इस चीज का भी डिस्कशन करेंगे। वंस वी विल डू वन मोर थिंग, देन वी विल एंटर इनटू द BGP पार्ट। ये BGP में भी बहुत सारा लैब है अभी। सर GRE का लैब देखो। GRE भी है आपकी किट में, GRE है, MGRE है, सारा चीज है। GRE में आपको दिखाता हूँ, होगा GRE। 8 नंबर। यस, दिस वन। यहाँ पे व्हाट विल डू, मैं आपको GRE करूंगा, MGRE करूंगा। आपको सिस्को सिलेबस में NHRP करके एक दिखाई देगा। NHRP कुछ नहीं होती है, MGRE DMBPN को आपको उसी के लिए नेक्स्ट ऑफ रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं, सेम टाइम होती है यूज। देन DMBPN होगा। DMBPN में 3 चीज होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, इसको फेज बोलते हैं। फेज 1, फेज 2, फेज 3। देन आपके IPsec टनल होगा, क्योंकि NRC बहुत लंबी सिलेबस है। IPsec होगा, जैसा IPsec होगा आपकी नेटिव IPsec होगा, टनल मोड होगी, ट्रांसपोर्ट मोड होगी। उसके बाद मैं IPsec को GRE में डालूंगा। जैसे GRE में डालूंगा, GRE की नॉर्मल पैकेट साइज क्या होती है, IPsec जैसे डालूंगा उसकी पैकेट साइज क्या बन जाएगी। ये वी नीड टू डू थ्रू द वर्सक। वर्सक में मुझे दिखाना सर पड़ेगा। मुझे एक हम्म। क्वेश्चन है सर, पहले हम GRE क्रिएट करते हैं या IPsec, या IPsec के बाद हम GRE क्रिएट करते हैं? देखो देखो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जनरली हम क्या करते हैं कि GRE डालते हैं, बट GRE क्या होती है कि GRE, अगर आपको पता है कि GRE आपकी है नॉन सिक्योर। यस सर, नॉन सिक्योर ठीक है, यहाँ पे आप डाटा ओपनली दिखोगे, ये चीज भी मैं दिखाऊंगा मेरे क्लास में। यहाँ पे तो है। मेरे पास ओरिजिनल डाटा नहीं होगा, मेरे पास राउटर की डाटा होगा। EIGRP में डालूंगा, यहाँ पे आपको दिखाई देगा इवन इफ मेरा EIGRP की ऑटोनोमस सिस्टम नंबर क्या है, वर्षक में दिखाई देगा ये चीज। तो यस। उसको सिक्योर करने के लिए हम क्या करेंगे, एक IPsec डालेंगे इसके ऊपर। बट जैसे आप IPsec डालोगे ना, वो पैकेट साइज सीधा इंक्रीज मारेगा 52 पे। तो उसको ओवरकम करने के लिए हम नेटिव IPsec कैसे डालेंगे, वो चीज करेंगे। ठीक है,
ओके ओके ओके, मैं सोच रहा था जीआरई मीन्स मेरा जो डेटा है, हम्म जो मेरा हम्म। पेलोड है वो प्लेन टेक्स्ट में मतलब वो दिखता है मतलब। हाँ और जीआरई काफी आपको फ्लेक्सिबिलिटी देती है, आप प्रोटोकॉल्स यूज कर सकते हो, जी। ओएसपीएफ जीआरई मतलब आईपीसेक में आप नहीं कर सकते। आईपीसेक में मैं प्रोटोकॉल यूज नहीं कर पाऊंगा। ये हम्म, होती है, मैं दिखाऊंगा आपको कैसे, क्योंकि ये होती है आईपीसेक में मैं जैसे जीआरई के ऊपर आईपीसेक डालूंगा, आई कैन यूज एनीथिंग। मैं आपको यहाँ पे ईआईजीआरपी यूज करके दिखाऊंगा। ओके सर। ओके। ईआईजीआरपी यूज करूंगा एंड आपको दिखाऊंगा कि भाई ईआईजीआरपी में मेरे को ना, जैसे जीआरई में मैं पैकेट कैप्चर करूंगा, वो मेरा ऑटोनोमस सिस्टम नंबर भी रीड कर लेगा, मेरा राउटर की आईएस वर्जन भी रीड कर लेगा वो। बट आईपीसेक जैसे डालूंगा, देखना आप उसके बाद वो कैसे एनक्रिप्ट हो जाएगा। ओके प्रैक्टिकली सर। दिखाऊंगा वो चीज। ओके, दिस कंप्लीटली वीपीएन पार्ट आल्सो वी विल कवर थ्रू दिस लैब। यहाँ पे एक आईएसपी डालूंगा, आईएसपी के साथ कनेक्ट करेंगे, आईपीसेक टनल बनाऊंगा, और सारा चीज वो विल डू। उसके बाद अगर मैं हाँ, बीजीपी में, बीजीपी लॉट ऑफ थिंग्स है, बीजीपी आल्सो विल टेक टाइम, लेट मी तो यू द बीजीपी। ये देखो, बीजीपी में पहले तो आपको पहली बेसिक कॉन्सेप्ट ईबीजी की थियोरेटिकल चीज होगा, ईबीजीपी आईबीजीपी कैसे होगा। उसके बाद बीजेपी की स्टेट्स जो होती है, 6 स्टेट, वो सारा चीज की डिस्कशन करेंगे प्रैक्टिकली। उसके बाद आपकी मतलब मल्टी हब कमांड कैसे यूज होती है, वो सारा चीज जो जो है वो डिस्कशन करेंगे। बट अगेन आई एम टेलिंग, क्वेश्चन आपको क्या मिलेगा बीजीपी में इंटरव्यू में? वेट, लोकल प्रेफरेंस, एएस पाथ, एमएडी। मिलेगा तो इसी चार में से, अगर आपकी मोर देन 5 years एक्सपीरियंस है। अगर यहाँ पे किसी का 3 to 5 है, somehow we will get this type of question along with this one। उस टाइम क्लीनली डिस्कस करेंगे। उसमें क्या होती है कि वो आपको क्वेश्चन पुट करेंगे, वो बोलेंगे कि मेरा जो रूट R4 से R1 आ रहा है, मैं चाह रहा हूं कि उस रूट ऐसे घूम के जाए, तो उसके लिए मैं क्या यूज करता। इस चारों में से मैं हर एक का प्रैक्टिकल दिखाऊंगा आपको, कि कैसे मैनिपुलेट हो रहा है डेटा, ट्रैफिक कैसे मैनिपुलेट हो रहा है। इस मेनली फॉर द मैनिपुलेट ऑफ द ट्रैफिक। उसके लिए हम क्या कैसे यूज करेंगे, वो आपको सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन देके डालेंगे। तो इस ये जो चार चीज है ना, दिस इज क्वाइट मैंडेटरी। ये ही पूछा जाएगा आपको सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, वो हम बीजीपी में करेंगे। लेट मी गो टू द सिलेबस अगेन। देन मैंने आपको बीपीएन बता दिया, ये देखो एमपीएलएस की थियोरेटिकल पार्ट है। जीआरई, एमजीआरई आपको यही मैं बताया था ना। एनएचआरपी, एनएचआरपी कुछ नहीं होती है, इसके साथ होती है अटैच, नेक्स्ट अप रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल होती है। क्यों यूज करते हैं मैं वो बताऊंगा, रीजन क्या है। जीआरई में मुझे नहीं चाहिए, आईपीसेक यूज करेंगे, डायनामिक नेबर यूज करेंगे, स्पॉक टू स्पॉक यही होती है। हब एंड स्पॉक, स्पॉक एंड स्पॉक, डीएमबीपीएन का पार्ट है ये देखो। हाँ, यहाँ पे आप सिंगल हब यूज करोगे, जैसे सीसीआई में यू विल एंटर देयर इज अगेन टॉपिक फॉर द मल्टी हब। जैसे दो हब होगा, अगर यहाँ पे क्या है कि सिंगल हब मतलब सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है आपकी एनआरसी में। बट सीसीआई में क्या होगा कि आपके पास और एक हब होगा। आपको यहाँ पे हब एंड स्पॉक टेक्नोलॉजी होती है। तो इसमें क्या होती है कि हब होती है, मैं मल्टीपल हब कैसे कनेक्ट करूंगा डीएमबीपीएन में, वो एक अलग सी टॉपिक होती है मल्टी हब वाला। तो उसके बाद ये, इसके बाद ये सारा जो टॉपिक है ना, छोटी छोटी टॉपिक है, ट्रिपल ए। बट ये आपकी रियल एनवायरनमेंट के लिए बहुत फायदा होती है। अगर कोई भी यहाँ पे डोटोनिक्स यूज किया होगा तो, या मैप ऑथेंटिकेशन यूज किया होगा, ही इज एवर अबाउट दिस पार्ट, ट्रिपल ए क्या होती है। तो ये सारा चीज हमने डिस्कशन करेंगे स्टैंडर्ड। सर हमारे यहाँ पे आइस यूज होता है सिस्को का नहीं, उसमें। आइस, आइस ऑथेंटिकेटर होती है, जो ऑथेंटिकेट करता है ना वो आइस होती है। हाँ उनमें बट भी ये आप, ट्रिपल। यस। हाँ बताइए। हाँ उसमें भी सर यही हम ऑथेंटिकेशन यूज करते हैं, टकास और ट्रिपल। टैकक्स रेडी, ये प्रोटोकॉल होती है। एंड आपको स्विफ्ट फाइल में अगर आपको ध्यान होगा तो ये कमांड डालनी पड़ेगी, ट्रिपल ए न्यू मॉडेल। जब ये डालोगे ट्रिपल ए इज एक्टिवेटिंग, उसके बाद आपको आइस की मतलब टैकक्स की कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, टैकक्स की जो की है वो डालना पड़ेगा आपको, टैकक्स सर्वर की आईपी डालना पड़ेगा, एंड रेडियस मतलब जो भी आपके आइस सर्वर है उसका आईपी डाल के उस की डालना पड़ेगा। सेम की आपको जाके आइस में ग्रुप के साथ अटैच करनी है। ये होती है प्रोसेस। ठीक है, ये सारा चीज। उसके बाद यूआरपीएफ की होती है, नया नया टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस किया, बट इट्स वेरी गुड। लेट मी
ट्राई टू एंटर समवन। ओके, ये सारा चीज कूप प्रोटोकॉल क्या होती है, उसके बाद आ रहे हैं डीएससीपी वगैरह, ये सारा स्मॉल स्मॉल टॉपिक, बट मुझे आई थिंक कंसोल क्या होती है, वीटीवाई आप लोगों को आता है, बट यू नीड टू डू एसएनएमपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फॉर इंटरव्यू पर्पज। क्या डिफरेंस होती है वर्जन 2 एंड वर्जन 3 में, ये सारा चीज जो जो छोटी छोटी टॉपिक हो गया, विल कवर दैट वन। एनकर में भी छोटी छोटी टॉपिक कुछ है, ये अगेन है सिस्को डीएनए। एंड बिलीव मी, अगले 3 से 4 साल ये मार्केट में ऐसे बूमिंग होगा, बहुत मतलब बढ़िया चीज है। ड्यू टू द कोविड ये बहुत पीछे चला गया था, क्योंकि ऑफिस बंद हो गया था, सारा चीज ये मेनली लैन नेटवर्क का है, तो सब कुछ बंद के पड़ा था। बट जैसे अभी अभी ऑफिस खुल रहा है सारा, तो ये अगले 2 to 3 years में ये मार्केट ले लेगा बढ़िया से। उसके बाद एंकर में भी है छोटी छोटी टॉपिक, बहुत सारा है। जितना मैंने डिस्कस किया बड़ी बड़ी टॉपिक है, राइट नाउ इट्स ऑल द स्मॉल टॉपिक। एनटीपी हो गया, नेट हो गया, पैट हो गया, क्या डिफरेंस होती है पैट में। उसके बाद एचएसआरपी बीआरआरपी, ये पूछा जाएगा आपको अच्छा खासा क्वेश्चन। इसमें आपको ट्रैकिंग के साथ पूछेंगे, वो ट्रैक कैसे करनी है, मतलब आईपीएसएल है। यहीं पे कवर कर दूंगा, आईपीएसएल ऐसे भी स्पेसिफिक पार्ट है, बट यहाँ पे मैं एचएसआरपी बीआरआरपी में आईपीएसएल डालूंगा। ठीक। उसके बाद पीएम की थ्योरी है, क्या होती है मल्टीकास्ट प्रोटोकॉल, क्या होती है आईजीएमटी जॉइन ग्रुप, ये है। देन नेटवर्क एसिडेंस की पार्ट, स्मॉल स्मॉल टॉपिक जो एनआरसी में आपकी कुछ है, एसएनएमपी क्या है, सिसलो क्या है, रिमोट लॉगिंग, नेट फ्लो क्या होती है, स्पान और स्पान, ये देखो आईपीएसएल है। अगर सिंगल आईपीएसएल कॉन्फ़िगर करूंगा कोई फायदा नहीं है, मैं एचएसआरपी बीआरआरपी के साथ लेच करूंगा इसको, कैसे काम कर रहा है आईपीएसएल एक्चुअली। उसके बाद नेटकॉम रेस्टकॉम, नेटकॉम रेस्टकॉम में कवर करूंगा आपको ऑटोमेशन के साथ, अलग अलग नहीं एक साथ। उसके बाद स्मॉल लाइक ट्रिपल ए, ऑलरेडी वहां पे मैं एनआरसी में था, कुछ बहुत सारा चीज, मतलब छोटी छोटी चीज दोनों की सिमिलरिटी है एनकोर एनआरसी में। अगेन एससीएल विल डू, बट हियर विल डू स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट, एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट, ओनली टू। एनआरसी विल डू वन मोर टाइम बेस्ड इन एनआरसी। देन ये वायरलेस की सब ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल होती है, ठीक है, वो थियोरेटिकली डिस्कशन करेंगे। एंड फोर थिंग्स एवरीवन नोज दिस पार्ट अप टू दिस, क्या होती है एंड पॉइंट सिक्योरिटी, क्या होती है एनजीएफ फायरवॉल, ये सारा चीज। देन अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट, मैंने जो चीज अभी हाईलाइट किया था सेम टाइम में मैं बताऊंगा जब ट्रिपल ए करूंगा आपके साथ। .1x यही पूछा था मैंने। एंड देन विल गो टू द ऑटोमेशन। वंस विल डू द ऑटोमेशन, यहाँ पे ऑटोमेशन में देखो आपका थियोरिटिकल चीज ज्यादा है। व्हाट वी नीड टू डू थ्रू दिस ऑटोमेशन टूल, आई विल कॉन्फ़िगर राउटर, आई विल एग्जीक्यूट सम आउटपुट फ्रॉम दैट राउटर। क्योंकि यहाँ पे वो चीज नहीं है, यहाँ पे थियोरेटिकल चीज है, कोई फायदा नहीं। पाइथन तो हम करेंगे, बेसिक पाइथन है, उसके बाद सारा थियोरेटिकल टॉपिक है, डिस्क्राइब डिस्क्राइब। बट हम एक लैब करेंगे, इधर नेटमिको में दिखाऊंगा आपको, एक टूल होती है यार, और पैरामिको। इन दोनों में से मैं कैसे मेरा राउटर बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ थ्रू द टेम्पलेट, और कैसे मैं आउटपुट निकल रहा हूँ, ये एक लैब में आपको दिखाऊंगा। ऑल्दो इट्स नॉट देयर, इट्स द पार्ट ऑफ द डेवनेट एसोसिएट, बट आई विल डू वन लैब हु आर इंटरेस्टेड विद। सर यस। आई आई हैव वन क्वेश्चन सर। मार्केट में आप मीन्स मेरे से किसी ने पूछा था कि मुझे पाइथन करना चाहिए या लाइनेक्स करना चाहिए, मतलब दोनों में नेटवर्क में मैं जो ऑटोमेशन का जो आने वाला है जो है, तो देखो मेरे हिसाब से तो पाइथन इज द बेस्ट, बिकॉज आपको डेवनेट एसोसिएट करनी है। उसके बाद क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि नेटवर्क वाले बंदे जो है ना, हम इसमें मूव कर रहे हैं। रीजन, मुझे एसीआई के लिए भी चाहिए ऑटोमेशन पाइथन इसके साथ, मुझे एसडी1 के लिए भी चाहिए, मुझे एसडीए के लिए भी चाहिए। भाई कंट्रोलर तो मेन होती है ना टेम्पलेट पुश। तो हाँ इट्स यस। तो इट्स बेटर कि यहाँ से ऑटोमेशन सीखो। देन इट्स गुड अगर आपकी सीसीएनपी, ये नहीं कि आपकी सीसीएनपी क्लियर नहीं है, एनकर क्लियर नहीं है, एनआरसी क्लियर नहीं है। भाई देखो राउट स्विच जो मेन होती है ना, ये आर एंड एस, आप किसी भी इंटरव्यू में चले जाओ, सपोज आप आज की डेट में एक वायरलेस एक्सपर्ट की इंटरव्यू दे रहे हो, पहला क्वेश्चन आपको आएगा राउट स्विच में। अगर यहीं से चेक हो जाएगा राउट स्विच आप क्लियर नहीं है, उसका मतलब आप किसी में क्लियर नहीं है, सीधी सी बात। राउट स्विच क्लियर नहीं है तो आपको बाकी कुछ चीज आपका क्लियर नहीं है, आप पकड़ नहीं पाओगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राउट स्विच शुड बी वेरी क्लियर। आज की डेट में अगर आप एससीआई की भी देने जाओगे ना,
वो चेक करेंगे पहले राउट स्विच से 3 से 4 क्वेश्चन। अगर यहीं पे आप फेल हो जाओगे, वो समझ लेंगे आपको कितना एससीआई आता है। हाँ सर, किसी का भी आप फायरवॉल का भी इंटरव्यू दो, एसडी वैन का दो, वो स्टार्ट किसी ही का भी। स्विचिंग से स्टार्ट करेंगे, फिर राउटिंग पे जाएंगे, राउट फिर इधर स्विच के उधर बाद, घूमते लास्ट पे वो अपने मेन टॉपिक पे। राइट, अगर आज की डेट में जब भी प्रोफाइल लिखा होता है ना, सपोज एनीवन इज डूइंग द एसीआई प्रोफाइल, डीसी प्रोफाइल, ठीक है, तो उसको पूछते हैं सब राउट स्विच से। भाई राउट स्विच अगर बंदे को नहीं आएगा, ये मेरा कौन सा नेक्सस कॉन्फ़िगरेशन कर लेगा ये बंदा, क्योंकि नेक्सस में भी तो मेरा एसटीपी चलेगा ना। अगर यहाँ पे यस। आपकी एसटीपी नहीं आता है, जो चीज मैंने क्वेश्चन पुट किया था, 2 केबल डालूंगा, 3 केबल डालूंगा, भाई आप क्या नेक्सस कर लोगे। तो यहीं से 3 से 4 क्वेश्चन में पता चल जाएगा कि आपके अंदर क्या है। इसीलिए मैं इतना सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आपको बताया। आजकल वो इंटरव्यू नहीं है कि आपको पूछेंगे व्हाट इज एससीआई। नहीं नहीं सर, मैं अभी जितने भी इंटरव्यूज हो रहे हैं मैं हम्म। उनसे बात करता हूँ, वो बोल रहे हैं वो लोग 2-3 पेज रख के सामने इंटरव्यू लेते हैं। पहले वो इंट्रोडक्शन लेंगे, एक दो पूछेंगे, बट टोटली सिनेरियो बेस्ड, ये होगा टोटली तो ये क्या सिनेरियो होगा। बेस्ड। यस हाँ, यस। ऐसे। क्योंकि हम भी जिसको पूछते हैं वही, क्योंकि देखो अगर मैं व्हाट टाइप की क्वेश्चन पूछूंगा ना, बंदे इतना रट्टा मारते हैं पिछले 5 दिन से, रात भर दिन भर ऑफिस बंद करके बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। अगर मैं उनको पूछूंगा कि भाई बताओ बीजीपी में स्टेट्स क्या है, वो आराम से बोल देंगे आइडियल, कनेक्ट, एक्टिव, ओपन यस। सेट, ओपन कन्फर्म, एस्टेब्लिश्ड। उसके बाद में अगर मैं पूछूंगा सिनेरियो बेस्ड देके, भाई वहां पे मुझे राउटिंग फ्लो करके दिखाओ, वहीं पे खत्म हो जाते हैं। हाँ सर, अगर आप पूछोगे इस स्टेट में अगर मेरा मतलब नई कनेक्टिविटी होती है, अगर वो फिर से कैसे स्टार्ट कनेक्शन बिल्ड करेगा, तो मुश्किल हो जाता बताना। राइट। मैं अभी आपको बता दिया, जैसे वायरलेस, मैं बंदे को पूछूंगा क्या होती है एक्सेस पॉइंट, क्या होती है, वो सारा चीज बता देंगे। मैं उनको क्वेश्चन को इवन ऑप्शन 43 वाला भी बता देंगे रट्टा मार के। बट उनको मैं पूछूंगा कि मेरा आईओएस, सॉरी एक्सेस पॉइंट मेरा डब्ल्यूएलसी में दिख नहीं रहा, क्या करोगे, खत्म वहीं पे। तो वो सारा चीज के डिस्कशन करेंगे। बट आप माइंड में रखो, किसी भी फील्ड में जाने से पहले दिस इज मैंडेटरी। राउट स्विच क्लियर नहीं होगा फिर कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो ऑटोमेशन पहले जैसे, सर डर लगता था, मतलब बहुत सी चीजें माइग्रेट हो रही है क्लाउड पे, आने वाले टाइम में ये खत्म हो जाएगा। तो मुझे बा, कुछ दिनों के बाद रियलाइज हुआ, आप क्लाउड पे जाओ या क्लाउड के ऊपर जाओ, दैट डज नॉट मैटर, लेकिन जब तक आपको बेसिक राउटिंग स्विचिंग, तो हर जगह कितना भी कुछ चेंज हो, देखो हमारा वैन से एसडी वैन आ गया, एसीआई आ गया, लेकिन राउटिंग स्विचिंग तो वहीं पे है। अंदर तो वही चीजें है ना, बाहर चीजें चेंज हो रही है, लेकिन राउटिंग स्विचिंग तो मेन है ही है। उस पे आप ही सब चीजें टिकी हुई है। आप एक चीज बताओ मुझे, मैं डब्ल्यूएलसी की बात कर रहा हूँ फॉर एन एग्जाम्पल। आप उस डब्ल्यूएलसी को, क्लाउड क्या होती है यार, किसी से तुम स्टोर ले रहे हो, क्लाउड में इसी डब्ल्यूएलसी को मैं क्लाउड डब्ल्यूएलसी को सीडब्ल्यूएलसी को डालूंगा, कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी ना चेंज हो जाएगा मेरा। एंड आज की डेट में भी 90% लोग ऑन प्रेम प्रीफर कर रहे हैं, बहुत फायदा होती है ऑन प्रेम में। तो अगर राउट स्विच क्लियर नहीं होगा, देन आई डोंट थिंक कि कुछ बेनिफिट है। हाँ, इसके बाद आप ऑटोमेशन की जैसे बेसिक करोगे, देन अगर आपकी राउट स्विच पूरा क्लियर हो गया, देन यू कैन मूव इनटू द डेबनेट एसोसिएट, इट्स बेटर। अगर कोई चाहेगा कि नहीं भाई मैं वायरलेस डीपली मूव करूंगा, कर सकते हो। कोई चाहेगा SD1 कर सकते हो, SDA कर सकते हो, मतलब जिसको डीनक बोलते हैं, और SCI कर सकते हो। अभी की सबसे देखो यहाँ पे आज की डेट में बहुत बंदे मार्केट में आ गए हैं, SD1 में बहुत मिल रहे हैं, इसमें बिल्कुल मिल नहीं रहा है। इसमें मिल रहे हैं बट उतना कंपटीशन नहीं है। इसमें मिल रहे हैं, इतना बंदे नहीं है, तो थोड़ा सा इजी हो रहा है जॉब लेने के लिए सीआई में। बट एस यस। डी वन में बहुत बंदे आ गए, और डीनाक में बिल्कुल नहीं है। अगले 2 से 3 साल के बाद जैसे कंपनी रिक्रूट करेगा ना, और जिसको डीनाक की नॉलेज हो गया होगा, उसका जॉब पक्का। जैसे अभी की डेट में एससीआई हो रहा है, क्योंकि एसडी वन अभी बहुत सारे बंदे मार्केट में। यस। तो यही थोड़ा आईक्यू रख के थोड़ा सा सामना सोच के चलना पड़ेगा नेटवर्क में, कि आगे क्या आएगा, क्योंकि ये बंद हो गया था आपकी कोविड की वजह से। अभी सारा ऑफिस बंद हो गया, खुल गया, एंड कोविड खत्म हो गया, तो ये आएगा। ठीक है, अभी मेरे एंड से मैंने खत्म किया, जो जो क्या कवर करेंगे क्या नहीं कवर करेंगे, इट्स टू लॉन्ग। नाउ आई एम गिविंग यू 10 मिनट्स, 10 मिनट का सेशन देता हूँ, या 15 मिनट, जो भी आप लोगों की मर्जी। आप पूछिए, क्वेश्चन आंसर सेशन में ओपन कर दिया, आप पूछिए। अरे अनम्यूट करो, पूछो जिसको जो पूछना है। देखो क्लास में साए रहेंगे ना, मजा नहीं आती है बिल्कुल। अभी तो नया नया मतलब शुरू किया है, अभी तैयारी करते हैं और
Someone is telling, but I'm not able to hear. कह रहा हूँ सर, अभी मैं बिगनर हूँ, अभी मुझे कुछ ज्यादा आइडिया नहीं ओके नेटवर्क ओके, कोई नहीं, सीसीएनए से शुरू करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी कोई किसी को कुछ, कोई कुछ पूछना चाहता है? किसी का कुछ भी डाउट? मेरा एक डाउट है, हाँ जी। जैसे कि अगर किसी ने सीसीए नहीं कर रखा हो और उसके व्याप में कई छोटी मोटी जॉब भी ना कर रहा हो, बाई चांस वो सिर्फ नॉर्मल ही हो, हम्म। और जो ये सीसीएनपी का कोर्स करने के बाद हम्म। क्या वो रियल टाइम में एंटर कर सकता है क्या? हाँ, आराम जिसको से कर सीसीएनपी की सकते। नॉलेज हो, आई रिपीट, जिसको सीसीएनपी की तो नॉलेज हो, हाँ लेकिन उसके पास एक्सपीरियंस नहीं हो हम्म। नेटवर्किंग का, हाँ, पर ये वाला कोर्स करके क्या वो डिपार्टमेंट में आ सकता है? और क्या वो ऐसा तो नहीं कि स्ट्रगल करेगा नहीं देखो, इजीली आ सकता है, बट रीजन ये है कि उसको जो जिस भी वो बंदा है, तो मेहनत करना होगा। देखो, हम्म, लैब खुद को प्रैक्टिस करनी है, अच्छा सिनेरियो लैब बेस्ट। प्रैक्टिस? हाँ, सिनेरियो बेस्ट, क्योंकि देखो थियोरिटिकल चीज अगर सिर्फ थ्योरी थ्योरी पढ़ोगे ना, मैं बंदे को देखना हूँ कि थ्योरी थ्योरी रट्टा मार देते हैं, कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि मैं ओके। आपको जितना लैब दिखा दिया ना, ओएसपीएफ में आपको वो अराउंड 20 to 25 लैब है। तो उस चीज को मैं तो आपको 5 दिन में करवा दूंगा, बट आपको वो चीज करने के लिए आपको 1 महीना लग जाएगा डीप प्रैक्टिस के लिए। तो अभी जैसे, जैसे कि हाँ मेरे पास बताइए। एक्सपीरियंस है, मेरे पास हम्म। एक्सपीरियंस है, पर नेटवर्किंग का नहीं है। तो मेरे पास सीसीएन की नॉलेज है। मैं ओके। जैसे कहीं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर वर्क कर रहा हूँ, हम्म। और मैं नेटवर्क डोमेन में आना चाह रहा हूँ, और मैं अपना एक्सपीरियंस दिखा तो दूंगा कि मेरे पास 3-4 साल का एक्सपीरियंस है। राइट। तो क्या वो ये आपका कोर्स सीसीएनपी करने के बाद क्या मैं रियल टाइम इन्वायरमेंट में आ सकता हूँ? आ भी आराम सकता हूँ से, तो मेरे पास सैलरी का कितना एक बूम मिलेगा मुझे? मतलब सैलरी का, देखो सैलरी के इसके लिए बात करूंगा, अगर आप सीसीएनपी करोगे, मैं बहुत सारे बंदे बोलते हैं कि आपको मिल जाएगा 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख। देखो उस चीज में तो हाँ मैं हाँ, बिलीव नहीं करता हूँ। देखो, सही ठीक है। बात है, जो इंडस्ट्री में मैं हूँ बहुत दिन से, ये बात मैं बिलीव नहीं करता हूँ कि सीसीएनपी करके आप सीधा 50 लाख में आ जाओगे, ऐसे नहीं होती है। देखो, ठीक है। अगर आपके पास सीसीएनपी है, एडवांटेज है, और आपके पास एक सर्टिफिकेशन है, ऑन दैट कंडीशन क्या होगा कि आपको सपोज पहला वाला कंपनी, देखो जो रियल है वही बता रहा हूं मैं, पहला वाला कंपनी आज की डेट में कितना दे रहे हैं? 30 to 35%। ब्रेकफास्ट आ गया आपका? ठीक ओके। है, ब्रेकफास्ट हो गया? इस चाय कंडीशन में वाय आपको मिलेगा, आपके पास अगर बेटर नॉलेज है विद सर्टिफिकेशन, यहाँ पे मिल जाएगा आपको 40%। जो बाकी अच्छा, बंदे ये को, चीज, ये एक क्वेरी है मेरे पास, जैसे कि आपसे कोर्स हम्म। करने के बाद क्या हम्म। सीसीएनपी सर्टिफिकेशन लेना जरूरी है क्या? देखो, और अगर कुछ कंपनी अच्छा, 90% कंपनी बिलीव इन नॉलेज वो नहीं मांगते हैं। ओके, ये मानते हैं, किसी अच्छा। कंपनी 10% उनका मैंडेटरी है। क्यों कंपनी का मैंडेटरी वो नहीं होती है, वो क्लाइंट की मैंडेटरी होती है कि मुझे मेरे ओके, प्रोजेक्ट में एटलीस्ट 5 CCNP सर्टिफिकेशन सर्टिफाइड होना चाहिए, होना ओके। चाहिए। ये क्लाइंट रिक्वायरमेंट होती है। ये कभी जैसे आपको एचआर पूछता है ना, आपके पास सर्टिफिकेशन है, वो कंपनी का रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो क्लाइंट रिक्वायरमेंट अच्छा, होती है। ठीक है, तो बेटर इफ यू कैन डू सर्टिफिकेशन, इट्स गुड, ताकि आपकी वो जो 10% है वो खुल जाएगा आपके लिए। तो इस कंडीशन में अगर बाकी बंदे को 30% मिल रहा है, आपको मिलेगा 40%। ठीक है, मैं ये ओके, नहीं बोलूंगा कि सर्टिफिकेशन। डायरेक्टली आपको 100% दे देंगे, नहीं। उसके बाद आपकी काम है, मिनिमम तो आपके पास 60 डेज होगा नोटिस पीरियड। हम्म, आपने डाला आज की डेट में रेजिग्नेशन, एंड इन 60 डेज अगर आपके पास सीसीएनपी की जो जो चीज हम बताएंगे पूरा क्लियर अप लैब होगा, तो ऑन दैट कंडीशन यू कैन इजीली क्लियर वन मोर इंटरव्यू। ओके, आप उसमें नेगोशिएट करो, वो देगा आपको। उस टाइम 40% नहीं मिलेगा, रियल लाइफ में क्या होती है 20% मिलेगा। तो 40 + 20 आपके कितना हो गया? 60% हाइक होगा। और यू आर, इफ यू आर क्वाइट स्मार्ट, अगर आप बहुत बढ़िया मतलब सब कुछ प्रैक्टिस किया हो, उसके ऊपर और एक ऑफर ले सकते हो। बट इसके ऊपर ओके, जो ऑफर लोगे, ये वाला ऑफर का मत दिखाना, नहीं तो कंपनी को लगेगा ओके, भाई 3 ऑफर लेके आ गया है ये ये, काउंटर कर रहे हैं। काउंटर ही काउंटर कर रहा है। तो बस आपको ये दिखाना है। लास्ट वन, लेट मी एडमिट समवन हु तो इज, तो मतलब मान के चले कि ये कोर्स करने के बाद, और अगर हम अच्छे से करते हैं, हाँ अच्छे तो से करना होगा। 50 to 60% हाइक इन अवर सैलरी। यस, देखो 40 to 50 तो ड्यूरेशन मैं क्या रहेगी गारंटी कोर्स देता। की? 50 to 40, बट अगर आपकी सैलरी, ठीक है, फॉर हम्म, एन एग्जाम्पल किसी का भी सैलरी अगर 35 लाख ऑलरेडी है,
फिर ये सर्टिफिकेशन लेके जाएगा। इस कंडीशन में 50% नहीं मिलती है। अगर आप ओके। बिलो 20 लाख की सैलरी किसी का है यहाँ पे, तो ऑन दैट कंडीशन आपको डायरेक्ट जो मिलता है 30 to 35 मिलता है। जैसे हम जैसे लोग को ऐसा होता नहीं कि 20 लाख के भी सपने का भी, तो मैं अगर मैं सीसीएन पे कर रहा हूँ तो हाँ ऑब्वियस बात है कि मैं 4-5 लाख या 5-6 लाख में ही जी रहा हूँ। ऑब्वियस बात है कि 6 लाख पर ईयर की मतलब 50,000 पर मंथ वाले ही हम लेते हो। पांच तो 5 लाख में इजीली आपको पहला पैकेज, आपको अगर आपकी नॉलेज सही से होगा, इंटरव्यू आपकी सही गया हो, तो इजीली 50% मिल जाती है। 40 to 50 5 लाख में। बट इस लेवल ओके, में नहीं मिलती है 30, मतलब 30 लाख के बाद और नहीं मिलती है। वो तो समझ गया क्योंकि वो तो ऑलरेडी बहुत हाई अमाउंट है। ऑलरेडी आप एक्सट्रीम में आ गए। हाँ, समझ गया समझ गया। ओके ओके। ठीक है। ठीक है, मैं मतलब कि मैं समझ के चलूँ कि आज से 2 साल बाद मैं अपनी सैलरी डबल मान के चल सकता हूँ। हाँ, थोड़ा सा मेहनत करो, सैलरी डबल दो, मतलब एक साल में एक चेंज कर दो। 1 year 1 चेंज, बस। एंड एक, मतलब मेरे हिसाब से तो 2 काउंटर लेके चलो। एक क्लियर किया और मिनिमम और एक इंटरव्यू जैसे क्लियर हो जाए, क्योंकि 60 डेज बहुत होती है। जिस टाइम आप इसमें समझ गया। एंट्री करोगे 15 डेज की नोटिस पीरियड में, तब आपको बहुत सारा कॉल आएगा एंड आपको उठा लेगा कोई ना कोई। इमीडिएट ज्वाइनर। इमीडिएट ज्वाइनर को कोई ना कोई उठा सही। लेगा आराम से। बट आज की डेट में सही कंपनी चुन, मतलब आपको वो करनी है, रेक्टिफाई करनी है। अच्छा, ड्यूरेशन क्या रहेगी आपके इस कोर्स की? इट्स कंप्लीट CCNP, इट विल टेक अराउंड 4 to 5 months, कंप्लीट CCNP एनकर NRC। बट ये जो एनकर रहेगा 2 months, NRC रहेगा 2 months, कंप्लीट 4 to 5 months, अराउंड 5 months, 4 to 5 months कंप्लीट एनकर NRC। बट जिसको एनकर करना है उसके लिए 2 महीना। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये मेरा, ये जो आपके इसकी क्लासेस की टाइमिंग होगी, ये अर्ली मॉर्निंग है कि या फिर ये जैसा नहीं, डेमो वो क्लास वो है? डिसाइड करेंगे, वो सब लोगों के डिसाइड कर। एबिलिटी के हिसाब से। सो बात करेंगे, फिर उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे, वो तो सबके सब। और ये उसमें कोई, लैंग्वेज अपनी हिंदी हिंदी रहेगी कि मिक्स की? वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि हिंदी तो अच्छे समझ में आती है तो उसमें हम क्वेरी भी कर लेते हैं। हाँ इंग्लिश में ठीक है, थोड़ा सा हिंदी में वर्डों के कर, हाँ network होता है। हिंदी में करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। कंटिन्यू करेंगे पूरा हिंदी में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं आपकी जैसे नॉलेज जैसे समझ में आ रहा है कि यू आर इन रियल टाइम, आपको अच्छी नॉलेज है। हाँ हाँ, और मैंने देखिए देखो, भाई है। मैं मेरे बारे में अभी नहीं बताया फिलहाल। लेट मी टेल यू, कंपनी के नाम में डिस्क्लोज नहीं करता हूँ, दैट इज नॉट गुड। कि अभी मैं मोर देन अराउंड 12 years से हूँ इस लाइन में। एंड मेरा जो कोर प्रोफाइल है वो RS है, DC है। DC में दोनों है मेरा, नेक्सस SCI मेरा बैच भी चल रहा है इसका भी। एंड वायरलेस है, ठीक। मेनली 9800, जिसमें मैं एक्सपर्टाइज बोल रहा हूँ। एंड ST, ये सब अच्छा, चीज में मेरा, जिसमें मैं काम करता हूँ, एक्सपर्टाइज है। गुड गुड। तो चलो, अभी हम हम एक्सपर्टाइज सीन, तो नहीं है पर इतना तो जान ही लेंगे चीजें आपके साथ रह के हाँ कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा सीख जाओगे, कुछ नहीं होती है। एक साल काफी होती है सारा चीज सीखने के लिए, एक साल काफी होती है। हाँ, मेन चीज है आप कितना टाइम दे रहे हो इसको। देखो, आप किसी से पैसे की अब उम्मीद अब कर रहे बीइंग हो। बीइंग जो वर्किंग वर्किंग पर्सन, जैसे कि अब obvious बात है कि मैं तो जॉब भी करता हूँ और 10-11 घंटे तो मेरे अब ये 9-9.5 घंटे की तो जॉब होती है, वो आना तो नौ जाना एक घंटे की डेढ़ तो घंटा जॉब ही होती है, उसके बाद 1 hour और एक अप, घंटा 1 hour आना डाउन। जाना। तो अब तो आपको क्या लगे जैसा भी देखो, प्रैक्टिकल कि बी कितना घंटा प्रैक्टिकल, मैं दे अगर सकता हूँ, हम अगर मैं जैसे लोग कितने प्रैक्टिकल, घंटे दे सकते हैं पढ़ाई हाँ, को? Monday to Friday, अगर आपकी ये वाला सिचुएशन है, Monday to Friday फिक्स शिफ्ट है, नाइट नहीं है, तो मेरे हिसाब से इट्स बेटर आप 10:30 से लेके 12 AM तक अपना टाइम दो, Monday to Friday। एंड ठीक सैटरडे संडे एज अप नाउ, फ्राइडे नाइट और सैटरडे संडे, ठीक है। ये तीनों दिन नेक्स्ट 4 months के लिए, ये आप ये वाला पार्टी वाला सीन या पब वाला सीन ये छोड़ दो। इससे नेक्स्ट 3 to 4 months इससे दूर रहो। हर एक सैटरडे संडे, अगर किसी में, चलो किसी का बर्थडे आ गया, किसी का वो आ गया, वो तो मानता हूँ, बट ये सब चीज छोड़ दो अभी नेक्स्ट 3 to 4 months के लिए। एंड सैटरडे ठीक। संडे ट्राई टू गिव एटलीस्ट 8 hours। आपकी बहुत बढ़िया से कवर हो जाएगा विद इन 3 to 4 months। और मैं जितना कवर करूंगा ना,
ट्राई टू कवर ऑल द थिंग्स ऑन दैट वीकेंड। ये फिर आगे उसको अपने झोले में वो करके मत लेना, उसको बैग में डाल के, क्योंकि मैं आपको ईआईजेआरपी पढ़ा लूंगा, आप ओएसपीएफ क्लास में ईआईजेआरपी की प्रैक्टिस नहीं किए होंगे। ऐसे मत करना, ओके। वीकेंड में अच्छा उसको अच्छा। कवर कर देना। इसीलिए मैं बोला कि पार्टी पार्टी उस टाइम 3 to 4 मंथ्स दूर रहना, उसके बाद नहीं मन पर मर्जी कर लो, मेरी तो जॉब जैसे कि मंडे टू सैटरडे है ना, कोई मेरा तो प्रॉब्लम संडे नहीं है। होता है। नहीं ठीक है, मंडे टू सैटरडे है। आपकी दिन की है या रात की है? दिन की है। नहीं हाँ, जनरल शिफ्ट है। जनरल शिफ्ट है, आपको तो बढ़िया टाइम मिलेगा रात के 8 से 11 तक। हाँ थोड़ा सा मेहनत होगा, बट क्या कर सकते हैं, कोई हाँ वो ऑप्शन दिख रहा नहीं है है ना। मैंने, क्योंकि अब क्या है कि ठीक है कि समझ पर कर हाँ लेंगे जिस हिसाब से आप बता रहे हो। हाँ, बट संडे क्या करना, एक काम करना, संडे अपना मॉर्निंग 8 to 2 को यूज करना, 8 AM to 2 PM। हम्म, उसके बाद नाइट के लिए थोड़ा घूम लेना, ये कर सकते हो। ओके ठीक ठीक ठीक। ठीक है, क्योंकि हम ऐसे भी नहीं कर पाएंगे, जो क्लास 10th एंड 12th में जिस टाइप की पढ़ते हैं बंदे, वो नहीं कर पाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और किसी को पूछ, वो डिस्कस करेंगे, जो भी पूछा है एसपी, वो डिस्कस करेंगे, वो आप हाँ अभिषेक मेरा भी सर। एक क्वेश्चन था कि कोर्स हाँ प्राइस वगैरह हाँ, क्या है। वो इंटरनली डिस्कस कर लेंगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो ठीक है, वो तो कर लेंगे, हाँ, तो चलेगा चलेगा समझ और में। कुछ टेक्निकली कुछ नहीं भी, बस बस। टेक्निकली कुछ और डाउट, टेक्निकली पूछ लो, कुछ भी पूछना है मुझसे। ओके। नहीं मेरी तरफ से ऑल क्लियर है। हाँ, ओके, कुछ सो होगा तो क्लास में आई पूछिए। थिंक सबको सारा क्लियर हो गया। ओके, सो आई थिंक वी आर गुड टू क्लोज गाइस, क्लोज करें। यस यस। अच्छा नेक्स्ट नेक्स्ट डेमो होगा कि अब नेक्स्ट क्लास होगा उसके बारे में नेक्स्ट डायरेक्टली कैसे पता स्टार्ट चलेगा? होगा। विल सी, अगर बहुत एक्स्ट्रा कुछ और बंदे आएंगे तो वन मोर डेमो। ठीक है, नहीं तो विल नीड टू एंट्री इनटू द क्लास, डायरेक्टली एंटर करेंगे। गॉट इट गॉट इट। ठीक है, वो देखेंगे बंदे की क्या रिक्वायरमेंट है, किसको सीसीएन है, अगर किसी को सीसीएनपी करना है अलग से उसको डालेंगे बैच में, किसी को सीसीएनपी करना है अलग से डालेंगे, किसी को सिर्फ एनकर करना है तो सीसीएनपी एनकर से शुरू करेंगे, तो विल सी क्या रिक्वायरमेंट है। गॉट इट। बट अगेन वही बोल रहा हूँ, नेक्स्ट 3 to 4 months ट्राई टू स्पेंड सम टाइम ऑन द आरएस। ऑब्वियस बात है कि अगर हम ये कोर्स कर रहे हैं तो किसी को हाँ, सोच के करेंगे। क्योंकि देखो आप भी पैसा खर्चा कर रहे हो, आप भी टाइम बिल्कुल। टाइम दे रहे हो। देखो हम्म, मुझे तो पैसे मिल रहा है, मुझे तो मतलब, आप अगर नहीं करोगे मेरा नुकसान कुछ नहीं होगा, बट बाद में ये हम्म, होगा, मेरे बैच से एक भी बंदा इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाएगा अगर आप नहीं पढ़ोगे। तो फिर यही ओके। होगा कि भाई इस बैच से एक भी बंदा क्रैक नहीं हुआ, तो वो मेरे ऊपर बात आ जाएगी। ओह, ये आपके पास नहीं। ठीक है, ठीक है, वी विल ट्राई टू गिव आवर बेस्ट। हाँ थोड़ा ट्राई करना टाइम देने के लिए, चलो कोई नहीं। गुड ओके। डे गाइज, बाय, हैव ए नाइस डे, गुड डे, बाय।